ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੀ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਡਰਾਮਾਟਿਕ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 20 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈਟੈਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੀਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਡਰਾਮਾਟਿਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇसी ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ 84 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਚਪਨ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਫਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਾਵਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਣਾ, ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਏ। 40 ਦਿਨ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੰਗਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਗਣਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 1900 ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕੰਗਣਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਵਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਕਅਪ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਕਅਪ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਛਬੀਲ ਲਗਾਤੀ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਛਬੀਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਨੋਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਤੱਕ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਏਜ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। दिग्विजय के वास्ते निकलेंगे हम संसार में, काट डालेंगे वो सर जो ना झुके इस चरनार में। जब गदा चूटी की आई तो उसके
उसके पर पैदा हुए। राम देख, तेरे मारने को हम पैदा हुए। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। हम लंकेश है, हम लंकेश है, हम लंकेश है। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੀ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जय श्री राम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? कपिल शर्मा। ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 20 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं काफ़ी समय तो अपना जो भी रामलीला का मंचन होता है हर साल, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਐਕਟਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਏ, ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर देयर ਫਿਊਚਰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। माता जी, आपको तो सच में बदगुमानी हो गई है, परंतु जिस वस्तु से आपको विश्वास हो जाएगा वह मेरे पास है। रामदूत में मत जान की, सच शपथ करुणा निधान की, मात मुद्रिका राम की लाया, प्रभु ने ही मुझे यहाँ भिजवाया। एक जगदम्बे एक जगजननी, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे सुध लेने आपकी आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए माता, इसलिए मुद्रिका लाया हूँ। माता जी, आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए और मन में धैर्य धारण कीजिए।
मैं अपने ख्यालों में नहीं खोई हुई थी। गाने में जान तू भी अब तक मेरे मुख से निकले, गुस्सा तो पूरा घर खोल लिया बेटा। माता जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके लिए प्राण भी दे सकता हूँ। काफी मेरे समय थे जिससे मैं मामूली सा काम करवाती थी और उसे मुंह मांगा इनाम देती थी। फिर अफसोस, आज ये समय है कि मैं ठीक से तुम्हारा आदर सत्कार भी नहीं कर सकती। माता जी, अब मुसीबत के दिन खत्म हो गए हैं। मेरे वहां लौटते ही प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपके सब कष्टों का निवारण करेंगे। धन्य होकर तुम धन्य, तुम्हारा कल्याण। तुमने निराशा रूपी नदी में बहने वाले आशा रूपी किनारे से लगाया। तो स्वामी तथा भैया लक्ष्मण सहित सब कुशल तुम्हें। तो स्वामी अपनी दासी को याद भी करते थे। हाँ माता जी, वहां सब प्रकार से कुशल है। और माता, यदि शुद्धि नहीं रखते तो मुझे शुद्ध लेने को भेजा है। माता, वहां कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सहती हैं उससे दुगने वे सहते हैं। धान रहे पे पानी के इस प्रकार दयानिधि रहते हैं। डंका में रघुकुल का डंका माता बजने वाला है। वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप, ये भी तो फल दिखलाएगा। इस बल से ही वानर मंडल निश्चय दल पर जीत पाएगा। आज्ञा नहीं है मात मुझको, अन्यथा दास दिखला जाता। इस लंका नगरी को चौपट कर मैं अभी तुमको निभा जाता। तुम्हारी इन बातों से मेरे मन को अजीब शांति पहुंची। परंतु मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें ऐसी क्या निशानी है? मेरे पास तो इस कमरे के सिवा कुछ भी नहीं। तुम यही ले जाओ, मेरी कथा सुना देना। थोड़ा जो पान सहनता पर उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ क्या मुझसे कि मुझे पिसारे बैठे हैं। मैं कड़क काल कहना करूँ, अपना प्रण हारे बैठे हैं। यदि एक मास के भीतर स्वामी ना आकर छुड़ाएंगे तो कह देना अपनी सीता को जीवित नहीं हो पाएंगे। नहीं माता जी, अब अधिक देर नहीं लगाएंगे। माता जी, आप इंतजार कीजिए या मेरे साथ चलिए। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, परंतु मैं किसी पराये पुरुष के साथ नहीं जा सकती। जाऊंगी तो केवल अपने पति श्री राम के साथ, अन्यथा नहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। अच्छा माता जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे मां, विनती है एक, फिर कुछ मन हिचकता है, फिर मुंह खोल कहे से बालक का चित्त मचलता है। आया हूं सिंधु नाम करके, इसलिए कुछ भूख सताती है। और इन हरे भरे वृक्षों को देख मेरी भूख भी बढ़ती जाती है। माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या इन्हें खाकर अपनी भूख शांत कर लूं?
दिलाई देते छोटे से भोले भाले से वैसे मैं तुझे पाऊं सुनते मुझे ये भाई फिर कार्य समय बदल रही तो सब साधन के लाचार हे माता, तुम चिंता त्यागो, मुझ पर थोड़ा विश्वास धरो। अपने पुत्र रामदास पर तुम थोड़ा विश्वास धरो। मन के भीतर, मन के बाहर सिर्फ राम नाम का चोला है। इसकी धन्य माता, मैंने बल को नहीं तोला है। माता जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से मेरे रक्त में नई शक्ति का संचार होगा। अजब अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ हो तो प्रभु सदा अनुसर देता। श्री राम चरित्र के पन्नों पर तेरा भी नाम महान हुआ। श्री राम चरित्र के साथ साथ तू भी महान हनुमान हुआ। जहाँ राम मंदिर होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ हनुमान प्यारा भी होगा। जाना हो तो जा बेटा, हमने तुझको भक्ति दी, शक्ति दी, युक्ति दी और इन चरण की भक्ति दी। जहाँ राम सुमिरन होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा। जहाँ राम महिमा होगी वहाँ जिक्र तुम्हारा भी होगा। जय श्री राम। जय
विजय के वास्ते निकलेंगे हम सारे खास डालेंगे वो सर जो न चुके इस करतार में। जब कजा चूटी की आई पहुंच गए उसके पर पैरा में राम जय तेरे मारने को हम पैदा हुए। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। मंत्री जी कुछ मालूम हुआ कि हमारी हरी भरी अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और हमारे लगते जिगर अक्षय कुमार को मारने वाला कौन है? जी महाराज, पवन का पुत्र हनुमान। क्या तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वह देखिए सामने से इंद्रजीत जी उसे पकड़ कर ला रहे हैं। पिताश्री अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार का वध करने वाला गुस्ताख बाबर आपके प्रमुख है। बेटा मेरे नाम हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब कहिए पिताश्री क्या क्या है? इसे गर्दन दिया जाए। इस अपराध के लिए इसे मृत्यु दंड दिया जाए। क्षमा कीजिए महाराज, तू ही न्याय पद कर कह दे किस तरह का तेरे साथ व्यवहार करूं। जय श्री राम। दशमुख की प्रश्न पुस्तिका के मैं पन्ने क्रम से लेता हूं। पहले जो पूछा आपने उसका ही उत्तर देता हूं। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। अरे रिजिधि जिनसे स्वरूप रखा मानव जिन्हें खर दूषण है। और ध्यान दिलाता हूं जिनकी सियाहत हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को। इतने में दुख लगी मुझको, हो गया विवश फलकाने को। और अक्षय पद का उत्तर है ये, सबको अपना तक प्यारा है। अरे उसने मुझे मारा तो मैंने भी उसे मारा है। तो तू नहीं जानता, यदि लंका में पकड़े गए तो रावण से जान बचाना मुश्किल ही नहीं असंभव ही है। रावण बाबर का क्या डर? मेरे लिए स्वस्थ सोने की लंका और जंगल एक समान है। चांद करकम लाल फूल सूरज को मुख में रख दिया। क्या हुआ लंकेश? जो स्वाद तुम्हारे फलों का चख लिया।
यदि तूने ये नीच कार्य ही करना था तो किसी राजा महाराजा के पास चला था और भगवान सिंह का दूत बनने की तेरे मन में क्या समाई? ऊपर से बड़ी शान से कह रहा है मैं राम का दूत हूँ, राम का मैं। राम ना हुआ कहीं राजा दिमाग हुआ। धिक्कार धिक्कार तो तुम पर है रावण, और तुम्हारी समझ पर भला उससे भाग्यशाली और कौन होगा जिसे प्रभु श्री राम के चरणों में रहने का स्थान मिला। तुम्हारी तो तकदीर ही फूटी है रावण, जो त्रिलोकीनाथ से पैर मोल ले रहे हो। अरे नारायण, जो जिस दिग्गंगे को त्रिलोकी नाम कह रहा है, ऐसे तो कई तुझदार हमारी सेवा करने में अपना गौरव समझते हैं। तूने त्रिलोकी नाम देखा भी है क्या? कानों से ही सुना है। त्रिलोकीनाथ का क्या देखना और क्या सुनना, मैं तो सदैव उनके चरणों में रहता हूँ। हालांकि यदि तुम भी चाहते हो तो तुम्हें भी दर्शन करवा सकता हूँ। ओहो, जिसे तुम त्रिलोकी नाथ समझ बैठा है, ऐसे तो कई तुझदार हमारी सेवा करने में अपना गौरव समझते हैं। और तुम बात त्रिलोकी नाथ की रट लगाया जा रहा है। कहीं हम तुम्हारी जुबान न खिंचवा लें। पहले तुम अपनी जुबान को काबू में करो, जो बार बार त्रिलोकीनाथ नाम की रट लगा रही है। परंतु उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये नाम ही ऐसा है जो खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। ओ, रस्सी जल गई, परंतु बल नहीं गया। किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही तम है, वही कम है। हमें हैरानी है कि तुमने ये नीच और पतित कार्य करने की तो ठानी है। अरे मूर्ख, इससे तो अच्छा था कि तू चुल्लू पर पानी में डूब मरता, ताकि तेरे माता पिता को यह भी देखना नसीब न होता। अभी वक्त है तेरा पश्चाताप करने का। यह है काम विनाशक रावण, तूने धूप भरने का। हनुमान, तुम्हारी हालत देखकर हमारी तो गर्दन शर्म से झुकी जा रही है। अभी तक तो झुकी है, तुम्हारे ही झुकाए से किसी दिन इसी जमीन से ना उठेगी करके तुम्हारे ही उठाए थे। अरे हनुमान, आज तुम किस निराले ढंग की बातें कर रहे हो? क्या तुम पुराने संबंधों को भूल गए? नहीं लंकेश, बल्कि उन्हीं संबंधों के कारण मैं आपको समझाने आया हूँ। हनुमान आज भी आपका वफादार है। वाह, वफादार, अरे नालायक, यदि तुम जैसे दो चार और वफादार हो जाए तो रावण का तो बेड़ा पार है। अरे देखा, तूने अच्छी
भई अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। हमारे रक्त जिगर अक्षय कुमार को मौत के घाट उतार दिया। बार बार रोका तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ऊपर से कह रहा है वो वफादार है। ये तो जितना भी दर्द दिया जाए उतना ही कम है। मैं गया था कौन सा तुमको बुलाने के लिए, उन्हें आप भी लाए थे झगड़ा बनाने के लिए। कहा हम किस आते हैं पर आखिर खाने के लिए। हाँ तुम अगर बांध ले जाता घर ले जाने के लिए। ना इतनी सी बात पर पीछे में मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको, लेकिन खुद ही मर गए। और मारा जाएगा तेरा वो राम, और साथ में मारी जाएगी तेरी वो छोटी छोटी बालन सेना जिस पर तुझे इतना अभिमान है। रहमान, तूने जो उनको अदब कहा तो शान नहीं कुछ घटती है। कितनी भी फेंके धूल बदल मैं सूरज तक नहीं पहुंचती है। तू तेरा तेरा कहता है वे किस दिन काम न आएगा। तू मुट्ठी मुंडे आया था और हाथ पसारे जाएगा। नहीं जरानत से बाहर आ रहा। जुबान इतनी चला रहा है हमारी इज्जत और आबरू को मिट्टी में मिला रहा है। इज्जत आबरू आप कोई कसूर मेरा बतला रहा है। अजब अंधेर है दुनिया वालों, जमाना कैसा आ रहा है। जय श्री राम। अरे बाले, तुझे जिंदा लाने को कहा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। लंकेश, तुमने कई भूलें की हैं। पहली भूल ये कि अपनी बहन के कहने में आकर तुमने श्री राम से बैन मोड़ ले लिया। और दूसरी भूल ये कि मुझ जैसे आए दूध को बैठने का आसन नहीं दिया। तुम जैसे दास की जगह तो हमारे जानों में भी नहीं है। ये तुम्हारी एक बात है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम महाविद्वान और चार वेदों में ज्ञाता हो, परंतु वास्तव में क्या? वास्तव में महामूर्ख और महाअहंकारी हो। जान है हसरत है रावण की। किले पर फतह करना ताकत है रावण की। मैं वो रावण हूं जिसने बनाई लंका और भारी है। यहाँ देवता की नहीं, हुक्म हमारी तारी है। यूं नाम रख देने से कोई बन जाता भगवान नहीं। उन बदमाश गलती छोड़ रखो। हमारे पद की पहचान नहीं। राम एक पृथ्वी पर रहने वाला एक छोटा सा इंसान है। हम उन राज्यों के राजा हैं जिनका आहार ही मानव है। तो मैं तुझे तेरी बदजुबानी का अभी मजा दिखाता हूँ और तेरा अभिमान चकना। महाराज,
महाराज महाराज व्रत जी ठीक कहते हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। यदि आप इसे दंड देना चाहते हैं तो कोई कड़क दंड दीजिए। तूने हमें इस बात करने से रोका है, इसलिए दंड भी तुम ही सोच कर बताओ कि इसे क्या दंड दिया जाए। मेरे विचार से मेरे को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ को कान लगा दी जाए। सजा की सजा और तमाशे का तमाशा। क्या प्यारा सुझाव दिया है बेटा मेघनाथ, इस बानर की पूंछ को आग लगा दी जाए। जो आज्ञा पिताश्री। वीडियो बना प्रभु राम की कृपा से मैं वो कार्य करके दिखलाऊंगा। बिजली का नाच नचा इसको, इसका घमंड बुलाऊंगा। जय श्री राम। तेरी सोने की लंका जल गई। जल पवन देख के देख इस लंका को जला देना। आखिर बस एक घर विभीषण जी का तुम जंगल से बचा देना। जय श्री राम। एक ऐसा सुझाव दिया हमारी सोने की क्या कहा? हमारी सोने की नक्कतवादी। बस कीजिए दादाश्री, ये सब आपके कारण हुआ है। पिताजी, हमें तो लगता है कि दादाश्री उनके साथ मिले हुए हैं। पवित्रचंद, तुम ठीक कहते हो बेटा मेरा। इसको इसी समय यहाँ से भगा दो। हम इसकी सूरत नहीं देखना चाहते। चल चल भाग यहाँ से।